زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ، ذکر رسول کرتے رہیں گے سدا سدا، ذکر رسول کرتے رہیں گے سدا سدا۔ جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، تا حشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ۔ فون کٹ جا رہا ہے بار بار لگ نہیں بھائی آپ اس کو اب کانفرنس پہ لیجئے، میری کال کٹ نہ کریے گا۔ ٹھیک ہے، ہم کٹ نہیں کرتے جی ٹھیک۔ میں اس کا ریفرنس پورا بتا رہا ہوں۔ آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا گیا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ یور کال ہیز بین پٹ آن ہولڈ، پلیز اسٹے آن دا لائن۔ آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا گیا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ یور کال ہیز بین پٹ آن ہولڈ، پلیز اسٹے آن دا لائن۔ ہاں ہو گیا، بولیے آپ۔ ہلو، ہاں راہیل بھائی۔ جی بھائی ہے لائن پہ ہو بھائی صاحب؟ ہاں لائن پہ ہیں۔ اچھا اچھا، کیا نام ان کا؟ جی قیصر امام۔ اچھا ہاں بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی راہیل بھائی، آپ کون ہیں؟ مطلب کہاں سے ہیں؟ کیا ہے؟ میں قیصر امام بول رہا ہوں۔ میں لکھنؤ سے ہوں، میرا نام راہیل خان ہے اور میں مسلک سے اہل سنہ و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں سنی حنفی بریلوی ہوں۔ تو یہ اہل سنت وقت تو ٹھیک تھا، لیکن پھر بریلوی تک یہ کیسے پہنچ گیا؟ جی کیونکہ بریلوی اہل سنہ و جماعت، اور بریلوی آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو اہل سنہ و جماعت سے جوڑ رہا ہے، اس لیے ان کی پہچان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں ہے نا یہ فرقے، تو پھر تو اہل حدیث بھی کہیں گے ہاتھ سے۔ ہم فرقے نہیں ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں۔ ہم نے آپ کو اہل سنہ و جماعت پہلے کہا، یاد ہے آپ کو؟ جی تو اس کے بعد وہاں پہ تو ٹھیک ہے، میں اس سے تو ایگری ہوں، لیکن اس سے آگے جو آپ نکلے ہیں۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، اہل سنہ و جماعت کے نام سے بھی آج کل کچھ پروڈکٹ انٹروڈیوس ہو گئے مارکیٹ میں، اس لیے اپنے آپ کو ہمیں سنی حنفی بریلوی کہنا پڑتا ہے۔ ضرورت کیوں پڑ گئی بھائی آپ کو، جب آپ اہل سنت پہ ہی رہتے؟ جی ضرورت اس لیے آ گئی کیونکہ پہلے وہابی اپنے آپ کو وہابی کہتے تھے، نجدی کہتے تھے، سلفی کہتے تھے، اہل حدیث کہتے تھے، اب وہ اپنے آپ کو اہل سنہ و جماعت کہنے لگے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو الگ ان سے کرنے کے لیے بریلوی لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے حقانیت کی اور مسلک پہ ہونے کی دلائل ہے۔ آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں یہ بات؟ آپ یہ ثابت کر دیجئے، آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ آج کے دور میں وہابی اپنے آپ کو اہل سنہ و جماعت اور دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنہ و جماعت نہیں کہتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک بات اور ثابت کر دیجئے کہ ولی کی نسبت سے اپنا کچھ اپنی جماعت کا نام لینا یا خود کو اپنی ایک ولی کی نسبت سے بتانا یہ غلط ہے۔ ہاں آپ کا کام ہے سننا۔ ہاں ہاں سن رہا ہے نا، لیکن میری بات ان سے ہو رہی ہے تو مجھے کرنے دیں اگر بیچ میں۔ ہاں بالکل 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 بالکل۔ بس میں ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا، جو بھی بھائی صاحب ہیں یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرقہ ہم تو الحمدللہ قرآن میں مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھ لیں مسلمان کیا کہتے ہیں، کوالٹی میں آپ کو بتا دیں۔ اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کریں۔ ہاں اللہ نے کہا کہ آپ کا نام مسلمان ہے، آپ مسلم ہو۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، مسلمان کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، قرآن سے بتائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا مسلم، اللہ نے قرآن میں مسلم نام رکھا، اس سے آپ ایگری ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں کون سی آیت میں کہا، میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں، کون سی آیت میں کہا، قرآن کے کس بارے میں کہا، کون سی سورہ میں کہا، وہ بتائیں نا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، قرآن میں تو الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں تو میں کیا گناہ کر رہا ہوں؟ ایک منٹ، آپ سے سوال یہ ہے کہ بریلوی ہے قرآن میں، ہم کہیں یہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علم ہونے کے بعد سوال نہیں کرنا اس کا، یہ پتہ ہے کہ آپ کو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ علم ہونے کے بعد سوال نہیں کرا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا، اللہ کو علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے پیچھے کیا چھپائیں، پھر اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، پھر اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا،
तो जरूरी थोड़ी ना है कि सवाल पूछने वाले को इल्म ना हो। हाँ, तो यही बात है ना। हाँ, जरा मुसलमान की तारीफ करें, मुसलमान की इस्तिलाही तारीफ बताएं। पहले सुन लें, पहले या तो बोल लें या सुन लें। मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, वही सुन रहा हूँ, जवाब सुना दीजिए। मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह के और रसूल के बताए हुए रास्ते पे अपनी जिंदगी को गुजारे, ठीक है ना, इसे मुसलमान कहते हैं। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताई हुई दलील बात से करे, दलील इस पे आप इसको नहीं, कुरान और हदीस अल्लाह ने क्या फरमाया। अरे दलील दे दीजिए ना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं मुसलमान किसे कहते हैं, इस्तिलाही मायने क्या है मुसलमान के। मुसलमान को बताए ना आपको, आप क्या मैं लिए करके दूं, क्या इससे एग्री है कि नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे इस्तिलाही मायने पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता इस्तिलाही मायने? आपको मुझे क्या पता नहीं पता, जो बात आपसे हो रही है पहले वो करें। मैं आपसे इस्तिलाही मायने पूछ रहा हूँ। इस्तिलाही मायने इंसान बाहवाला बताता है, आप हवाला तो दें। कुरान में है, मेरे लिए इतना काफी है। हम आपकी तरह अरे भाई, मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि आप सुन्नी अपने आप को साबित करो या हनफी साबित करो या गैर मुकल्लिद साबित करो, कहाँ कह रहा हूँ? सिंपली पूछ रहा हूँ मुसलमान के इस्तिलाही मायने क्या है, कुरान से बताएं, हदीस से बताएं। वेरी सिंपल है, अल्लाह पे ईमान लाना, ठीक है, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना, फरिश्तों पे ईमान लाना, हैद पे ईमान लाना, जन्नत और जहन्नम पे ईमान लाना, क़यामत के दिन पे ईमान लाना, इसी का नाम तो ईमान है। ईमान किसी को कहते हैं। अब आप अपनी मंतिक लगा रहे हैं, अब हम आपको अपनी बता दें क्या है। मुसलमान के इस्तिलाही मायने होते हैं जो अपनी मर्जी को अल्लाह पे छोड़ दे। अ पर्सन हु सबमिटेड हिज विल टू ऑलमाइटी सुब्हानहू व तआला अल्लाह, दैट पर्सन कॉल्स टू बी अ मुस्लिम। वही बात है ना, आप समझते करना बात नहीं, मैं इस्तिलाही मायने पूछ रहा हूँ। जब बात इस्तिलाही मायने की होती है वहाँ अकल का दखल नहीं किया जाता है चाचा जान। चले मौजू पे आते हैं, मौजू बताएं। वाजे कर दो कि मैंने जो आपको कहा वो हिंदी में कहा था ना, या उर्दू जो अपनी जुबान है हिंदुस्तान की, तो अल्लाह और रसूल की बात को मानना, ठीक है। इसे मुसलमान क्या कहते हैं, जरा ये बताएं तो। अब मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि इंसान किसे कहते हैं, आप कहेंगे दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, सुनता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, मर जाता है। अब इसके एक मायने और है। मैं आपसे मुझसे कोई पूछे इस इंसान क्या है, तो मैं कहूँगा अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। मौजू पे आइए, चलिए मौजू पे आइए, मौजू पे आइए, मौजू पे। मौजू मेरा ये है कि आप उसको बरेलवी कहते हैं, ठीक है, जैसा आपने कहा, ठीक है, आप अपने आप को मुसलमान नहीं क्या, सुन्नत वल जमात पे आ गए, और उसके बाद वहाँ तक तो ठीक है, आप वहाँ तक सही है। उसके बाद हनफी है, हनफी के बाद आप बरेलवी, तो उसके बाद सुन्नी है, उसके बाद बरेलवी हो गए, लेकिन आगे चल के कुछ और भी सकते हैं। कहने का मतलब है ये बरेलवी अपने आप को जो कहते हैं, ये कहाँ से कहते हैं, ये क्या है, क्या ये बरेलवी एक मसलक है जो रद्दे बिदत और रद्दे खारजियत और रद्दे वहाबियत, रद्दे देवबंदियत और गुस्ताखों से हमारे ईमान को अल्हम्दुलिल्लाह हक़ानियत की तरफ ले जाने वाला एक मसलक है। मुसलमान बन के भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। किसने कहा कि मुसलमान नहीं है? पहले आपने अहले सुन्ना व जमात, अगर आपके कानों के अंदर मैल न जमा हो तो आप याद करिए अहले सुन्ना व जमात मैंने कहा था। अब आप ये साबित करिए कि अगर कोई अपने आप को अहले सुन्ना व जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी कहता है तो वो मुसलमान नहीं। ये आप पे जिम्मा साबित करिए। हो गया ना, पहली बात मैंने जो कहा तो शायद आपके कान में नहीं गए। नहीं, मेरे कान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुले हुए हैं, आप बोले, हम सुन रहे हैं। तो झूठ बात है कि मैंने क्या कहा ना, सुन्नत व जमात तक तो ठीक है, जो बात जुबान से करा पकड़ उसी के लिए, आज सुन्नत व जमात तक। अभी हम कहाँ पकड़ेंगे, अभी आपकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फिरके में डिवाइड होगी, 73 फिरके में डिवाइड होगी, और जो जन्नती होगा फिरका वो एक होगा। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह उसकी पहचान क्या होगी? आपने इरशाद फरमाया वो मेरी और सहाबा की इताअत करेगा, यानी कि अहले सुन्ना व जमात कहलाएगा। अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए रसूलुल्लाह ने उसे मुसलमान क्यों नहीं कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान क्यों नहीं कहा, अहले सुन्ना व जमात क्यों कहा? तो इसी बात का तो देवबंदी भी कहते हैं और अहले हदीस भी कहते हैं। इसीलिए तो हम अपने आप को उनसे अलग रखने के लिए बरेलवी कहते हैं खुद को, और वहाबी अपने आप को वहाबी कहता है, देवबंदी अपने आप को देवबंदी कहता है। पहले आप साबित करिए कि आप वहाबी या देवबंदी। यही बात, हम मुसलमान, आप मुसलमान बन के बात करेंगे। यानी कि आप मुसलमान हैं, आपकी कोई जमात नहीं है।
الحمدللہ جماعت کیوں رہے گی بھائی؟ اللہ نے مسلمان کا، ہم مسلمان ہی جماعت ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ اکلوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان نہیں اہل سنت و جماعت میں سے ہوں گے، یعنی آپ کی کوئی جماعت نہیں ہے، آپ باہر ہی ہیں ایک دم. کیوں نہیں؟ وہ مسلمان ہی وہ تھے یا کوئی اور سے؟ نعوذ باللہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مسلمان تو کہہ کے ہر آدمی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے گا، لیکن جو اصلی جو ہوگا پیور فارم وہ اہل سنت و جماعت ہوگی. جماعت یعنی کوئی کسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے ہی نہیں، آپ کسی جماعت سے رابطہ ہے ہی نہیں آپ کا، یعنی کہ آپ اکلوتے ایک نیا فرقہ بن گئے آپ تو. جو اللہ اور رسول یعنی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہو، ہاں یہی ہے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں بات 73 میں سے 73 میں سے 72 جائیں گے جہنم میں. ہاں ایک جائے گا جنت سے. الحمدللہ وہ ہم ہی ہے. وہ آپ ہیں کون ہے وہ تو وہی پتہ چلے گا نا. پتہ چل چکا ہے، آگے بتائیے. ہاں اب یہ بتائیں کہ موضوع پہ بات کریں، کیونکہ شرک سے پہلے اسٹارٹ ہوتے، اس کے بنا تو کچھ کام ہی نہیں ہے. شرک سے شروع کریں گے. شرک وہ نہیں. ہاں چلیے شروع کرتے ہیں. شرک کی تعریف بیان کر دیجیے. اچھا اپنا دعویٰ پیش کر دیجیے، بات ختم، آگے بات کریں گے. دعویٰ کیا ہے؟ کیا بیان کریے جو ہے اور صرف جو جہنم میں لے کے جاتے اس کی کیا تعریف بیان کرو؟ پہلے بات سنیں اور بات کریں. جہنم میں لے جانے کے تو انسان کے اعمال بھی وہ بھی جہنم لے جاتے ہیں. جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ سب بھی جہنم لے جاتا ہے. ریاکاری کرنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، قتل کرنا، یہ سب بھی جہنم لے جاتا ہے. یہ سب شرک ہے. بہت بولتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. اچھا چلیے آپ بولیے. نہیں ہنسی کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں یا تو جو کو میں آپ کے لا علمی پہ ہنس رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز شرک ہے. معاذ اللہ. تو بتا تو رہے ہیں کا سب نہیں، آپ سنتے نہیں. بات نکال دیں. اچھا بتائیے. اگر ہے تو شروع کریں گے. اچھا بتاؤ بھائی. اچھا بتاؤ میں بھائی. اچھا بولیے. کہ شرک جو ہے، شرک پتہ ہی ہے. شرک اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفت میں. یہ آپ مانتے کہ نہیں کہ شرک ہے؟ اگر شرک کرتا شرک ہے. ٹھیک ہے. میں کچھ سوال کروں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو بات میں اچھا رہے. کچھ سوال نہیں، یہ بتائیں کہ ایک سوال آپ، ایک سوال ہم. بالکل ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ کا. سننے کی جی میں کر رہا ہوں کہ غیب میں سننے کی صفت. جی غیب میں. ٹھیک ہے. بنا کسی ذریعے کے، جیسے میں فون ہے، آپ بھی غیب ہم بھی غیب، ہم آپ کو جان لیں گے، اس کو نام جان رہے ہیں، لیکن یہ غیب نہیں ہوتی. ذریعہ اور اس کا ایک ذریعہ لیا موبائل سے، آپ کو وسیلہ بنا کے ہم نے آپ سے بات کریں. موبائل میرے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں لیا ہے. تھوڑا تیز بولیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. فون کے قریب آئیے. جی بالکل ہم قریب ہیں. بول رہے ہیں کہ غیب میں سننے کا، غیب میں سننے کی صفت کس کی ہے؟ غیب میں یا زید میں؟ غیب میں سننے کی صفت. غیب میں سننے کی صفت بنا کسی وسیلے کے، مطلب ڈائریکٹ سننا. ہم اگر دل میں بھی میری بات ہے، جیسے جو میرے بات دل میں، جاننے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کی اور اللہ جسے عطا کر دے. اللہ کی ہے صفت. الحمدللہ. اور اللہ جسے عطا کر دے. اللہ دل سے عطا کر دے تو اللہ دل سے عطا کرے گا تو وہ تو پتہ رہے گا کہ بھائی ہمارے ندیوں کو جیسے غیب اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی ندیوں میں سے جسے چاہیں عطا کر دیں. نبی تک نہیں جا رہے ہیں کیونکہ نبی تو اعلیٰ مقام ہے. اب میں ایک چھوٹا سا اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے آپ نے جواب دیا. اب میں اس کا ایک وضاحت کرتا ہوں، اس کو آپ اگر سن لیں تو بہتر ہے کیونکہ آپ نے جواب صحیح دیا. ہمارا سوال بھی تھا. ویسے ایک سوال آپ کا تھا، ایک سوال میرا تھا، بھول گئے آپ؟ نہیں تو وضاحت باقی ہے نا. نہیں جواب ہو گیا. اب کب کہا ہے کہ وضاحت باقی ہے؟ جواب ہو گیا. آپ نے کہا تھا ایک سوال کہا تھا. ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کی بات نہیں ہوئی تھی. وضاحت ہے نا، وضاحت. دیکھیے آپ بھی وضاحت کرنے کا آپ کو پورا کیونکہ چلیے میں آپ کو وضاحت کرنے کی بھی چانس دیتا ہوں. کریے. شکریہ. چھوٹی سی بات لے لیتے ہیں کہ ہم مزار پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک نارمل آدمی ہم گئے مزار پہ، ہم جا کے اللہ کے ولی ہیں جو بھی ہوں، ہم وہاں جا کے کھڑے ہوئے اور ان سے فاتحہ پڑھا. ٹھیک ہے. فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں جو بھی میں نے پڑھا اس میں جو کچھ بھی غلطی ہو اس کو معاف کر کے یا اللہ یہ دعا یعنی جو یہ ثواب ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں نارمل جو ہے جو اپنا آپ کو بریلوی حضرات کہتے ہیں. اچھا تو یہ ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے ان کے تو فیل میں سن رہے ہیں آپ؟ ہاں ہم سن رہے ہیں، بولتے جائیے. ان کے تو فیل میں سارے پیر بزرگ اولیاء بیٹین اسلام جتنے بھی مطلب لوگ ہیں ان کے نام جو ہوتے، یہ جو میرا مطلب
सवाब है ये हमारी अम्मी, हमारे फादर जो भी है उन तक, सारे मुसलमान तक पहुँचाए तो उनको बख्श दे, ठीक है। अब इंसान के दिल में कोई हाजत है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग जाते हैं जैसे कोई मुश्किल है, परेशानी है या कोई और भी चीज है उनके दिल में है, ठीक है, तो उनसे कहा जाता है भाई यहाँ क्यों मांगने के लिए आए, तो कहते नहीं अल्लाह के वली है, इनकी दुआ मैं डायरेक्ट नहीं कहना जो दे रहे हैं, ठीक है, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, बोलते जाइए, ये अल्लाह के वली है और ये मेरी बात को अल्लाह के यहाँ पहुँचा देते हैं, मेरे लिए ये दुआ करते हैं, ठीक है ना, यही होता है ना मसला की, इसमें तो आदमी करते नहीं तो ये तो शिक नहीं है। तो हम क्या ठीक है, आप वहाँ गए, आप वहाँ खड़े हुए, तो फातिहा पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ना पड़ा है फातिहा पढ़ा, उसके जो कुछ आपने बचना है अल्लाह से कहा कि भाई बच दें इनको। अब आप अपनी हाजत उनके सामने रखा कि मैं आया हूँ आपके दरबार पे, आप मेरे दिल की बात मतलब आप जान रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, आप मेरी बात को अल्लाह तक पहुँचा दें। ये नॉर्मल दुआ होता है ना, उन्होंने उनसे तो डायरेक्ट नहीं मांगा, बराबर। लेकिन मेरा ये सवाल है, जैसा कि आप पीछे कह के गए कि गैर में सुनने की सिफत सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह जिसे अता कर देते, तो कोई कहता है कि अपने नबियों में से अल्लाह जिसे चाहे अता करता है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है मेरे भाई कि गैर में सुनने की सिफत सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन हम जब अपने दिल में बात करते हैं, जब खड़े होके किसी मजाक वाले से, ठीक है, तो ये जो मजार में दफन है, ठीक है ना, वो मेरे दिल की बात सुनते कि जुबान से नहीं बोल रहे। अगर हम जुबान से बोलें तो भाई ये कहे कि भाई अगला सुन सकता है, हो सकता है कि वो जिंदा हो या फिर वो कब्र में जिंदा है वगैरह, ये एक मसला लगे, लेकिन हमने दिल में कहा कि वो आवाज मैं अपने कानों तक नहीं सुना, वो बात उन बुजुर्ग तक कैसे पहुंच गई और वो अल्लाह तक कैसे पहुंचाएंगे जब तक वो सुनेंगे नहीं। तो इसका मतलब जो आदमी खड़ा होकर बात कर रहा है उसका अकीदा तो ये इसका है कि जो मैंने कहा, यानी जो मेरे दिल में बात आई, मेरी जुबान भी हरकत ठीक से नहीं की, मेरे कान को भी नहीं सुनाई दी, वो ये जो मजार साहिब मजार है उन तक ये बात पहुंच गई। और ये बात आप भी जानते हैं कि जब तक सुनेगा नहीं, जब तक वहाँ तक वो बात पहुंचेगी नहीं, वो अल्लाह तक पहुंचाएगा नहीं, सिफारिश तभी करेगा ना। इसका मतलब है कि उसके दिल में तो ये सुन रहा है, और जो भी इंसान अगर ऐसा अकीदा रखते है कि ये सुन रहे हैं या मेरी बात इन तक पहुंच गई, ठीक है, तो वो शिर्क करेगा बकौल आपके भी कि गैर में सुनने की सिफत अल्लाह की है। हमने ये भी कहा था कि अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे, अपने नबियों में से, अपने नबियों में से, बेशक बेशक। चलिए अब मैं बताता हूँ, अब मेरी बात सुनिएगा, आपने सवाल कर लिया, अब मैं बोलूंगा, जवाब मेरा जवाब हो जाने के बाद आप बोलिएगा, बीच में ना बोलिएगा। ओके, एक मिनट, जैसे आप जो मैंने कहा आप उससे तफास रखते हैं या नहीं इस बात? मैं समझ गया हूँ, मुझे उस पर जवाब तो देने देंगे या अब जवाब भी खुद ही दे देंगे? उसी पे आप जवाब देंगे, मुझसे अरे मैं उसी से जवाब दूंगा भैया। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 963, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब चाहता है, पास मैं बंदों को अपना कुर्ब अता करता हूँ। जब मैं बंदे को अपना दोस्त, आपसे कहा था जब मैं बोल लूंगा फिर बोलिएगा, आपको इतनी तमीज नहीं है क्या? बीच में अगर मैं ये कह रहा हूँ हदीस की अगर नंबर बता दे तो बेहतर। नंबर मैंने आपको शुरू में बताया था, इसीलिए मैंने कहा था आपके कान में मैल है, फिर से बताता हूँ। और अगर कोई कॉल, अगर कोई फोन अपना स्पीकर फोन पे डाले उसको बंद कर दे, आवाज इको कर रही है जी, वो अदा हो रही है। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 963 963, ओके, हदीस कुदसी है कि रब फरमाता है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब चाहता है, पास मैं बंदे को अपना कुर्ब अता करता हूँ। जब मैं बंदे को अपना दोस्त बना लेता हूँ तो उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो चीजों को पकड़ता है, और उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब अल्लाह ताला जिस बंदे को अपना दोस्त बना लेता है यानी अपना वली बना लेता है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अब आप बताइए अल्लाह के कानों से कौन सी बात छुपी है? जी, आपके बात खत्म हो गया या मैं बोलूं? आप खत्म हो गई, अब आप बोले। यानी हदीस मुझे पता, उससे आगे आपने हदीस को शायद नहीं पढ़ा या फिर आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। ठीक है, अल्लाह कहता है जब बंदा, अल्लाह फरमाता है, हाँ अल्लाह फरमाते है कि जब नफी से बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जिस वजह से आपने ये किया ज्यादा बात से। और जब बंदा मतलब जब आपने लास्ट जो कहा कि पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, आगे बोलिए, पकड़ता है, ओके पकड़ता है, और वो जब दुआ करता है, वो जब दुआ करता है तो उसको अता करता हूँ,
ठीक है ना। क्या 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 जब दुआ करता है तो उसको वो बंदा जब दुआ करता है हाँ तो उसको अता करता हूँ। अच्छा ठीक है ना। अगर वो सब चीज कर ही रहा है, जब वो अल्लाह की सिफत ही नौजुबिल्लाह उसमें आ गई तो फिर अल्लाह क्यों अता कर रहा है उसको? अल्लाह की सिफत कहाँ उसमें आ गई? अल्लाह की सिफत उसमें कहाँ आ गई? सुनिए, अल्लाह भी बोलता है, सुनिए, अल्लाह भी बोलता है, आप भी बोलते हैं, आप में अल्लाह की सिफत आ गई क्या? माज़अल्लाह। अल्लाह भी सुनता है, आप भी सुनते हैं, क्या आप में अल्लाह की सिफत आ गई? माज़अल्लाह। अल्लाह भी देखता है, आप भी देखते हैं, क्या आप में अल्लाह की सिफत आ गई? माज़अल्लाह। या फर्क इतना है कि अल्लाह की अताई नहीं है, अल्लाह की जाती है, और अल्लाह जो बंदों को देता है वो अताई होती है। एक मिनट, वही हो गई बात खत्म। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ये जिंदा में है या मरने के बाद है? अल्लाह ताला ने इसमें अगर कहीं पे, हाँ चलिए, अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अंबिया या फिर वली, यानी जो आयत की तफसीर जब आप पढ़ेंगे, जब आप तफसीर जलालैन शरीफ पढ़ेंगे, तफसीर रूहुल मुआनी पढ़ेंगे, तफसीर कबीर पढ़ेंगे, तो जितने साहिब तफसीर हैं सब ने यही करा है कि जो आयत करीमा है जिसमें शहीदों को अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया है, शहीद अपनी कब्र में जिंदा है, तो शहीद का मर्तबा एक वली से क्या? एक मिनट मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ। शहीद अपने कब्रों में जिंदा नहीं है, अल्लाह ने क्या शहीद को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। दूसरी जगह क्या कहाँ जिंदा है? कहाँ जिंदा है शहीद? पहले सुने ना। हाँ सुनाइए। शहीद जिनको मुर्दा ना, जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए, मारे गए, उनको वो जिंदा है, तुम्हें शहूर नहीं। अच्छा, तो तुम्हें शहूर नहीं, जब आपको शहूर नहीं है आप प्रयास और फिर ये कैसे लगा सकते हैं? सूरे बकरा आयत नंबर 154, सूरे बकरा आयत नंबर 154। आप आधा गोल क्यों कर देते? मैं हदीस बताया, आधा गोल कर दिया। मैंने कहा कौन सी हदीस मैंने गोल करी भाई? जैसे आपने कहा ना कि अल्लाह उनके हाथ बन जाते हैं, हाथ बन के काम किए जाते हैं, तो है हदीस पूरा बयान करना चाहिए हदीस सिर्फ। और आपने हदीस नंबर नहीं बताया था, आपने कान खराब है, आपने पेज नंबर बताया। मैं हदीस नंबर से किसी हदीस को खोजता हूँ। सफा नंबर से आप नहीं खोज पाते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, बुक के लिए मुझे मस्जिद में जाना पड़ता है। तो कहाँ से खोजते हैं? इंटरनेट पे? इस्लाम 360 कहाँ से खोजते हैं? कहीं से खोजे, मैं नेट पर देखता हूँ। अरे इस्लाम 360। अच्छा लेते अच्छा हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे? चलिए बोलते हैं आगे। ये जो का, और इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि गैब में जो सुनने की सीखो। मैं जिंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदा तो इबादत करते करते अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हाँ। तो वो कुर्ब हासिल कर अल्लाह की, तो यहाँ जिंदगी है। मरने की बात की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि सारे अमल मुंतक़े हो जाते हैं, अच्छा। 3 को छोड़ के। अच्छा। अमल, ये जो सुनना है वो अमल है, ठीक है ना। इंसान जो बोलता है, जो करता है, वो उसका अमल है ना। तो मुंतक़े हो गए सारे अमल इल्ला 3 के। अच्छा। हदीस पता है, मौजूद पे जाने के लिए इतना ही काफी है। अच्छा। आपको ये बता दें कि मुंतक़े हो गए। अब ये हदीस को भी आप रखेंगे ना सामने, अब बताइए आगे। अच्छा, जो हदीस मैंने आपको बयान फरमाई है, जो हदीस मैंने आपको बयान फरमाई है, अभी आपने कहा कि अल्लाह की सिफत है ये, तो हाँ जिंदा कह लिया है। अगर ये कैद कहाँ लगी है? जिंदा की कैद कहाँ है? क्योंकि दूसरे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कैद को बता दिया ना कि भाई मर जाता है इंसान तो उसके सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं। हदीस का नंबर बताइए, हदीस का नंबर बताइए, बाब बताइए, दिल बताइए, हम भी देखें तो। एक मिनट, आप अपना नंबर दे दें, हम आपके हर हदीस जो बता रहा हूँ। बात यही हो रही तो यही बताएं ना। अभी मैं तस्दीक कर लूंगा, मेरे पास किताबें मौजूद हैं, अभी मैं तस्दीक कर लूंगा। भाई मेरे पास किताब मौजूद नहीं है और ना ही मेरे पास नंबर मौजूद है। मैंने कहा ना, अगर ये हदीस गलत है फिर मैं अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा। आप अपनी तरफ से बातें काहे बढ़ाने लगते हैं? आप जो बता रहे हैं क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं आपसे दलील मांगू तो आप कहेंगे अल्लाह के मैं पकड़ा जाऊंगा, अल्लाह के पकड़ा जाऊंगा। अरे यहाँ बात हो रही है, उसकी दलील दीजिए ना। नहीं बोलते ना, आप अपना नंबर दे दें, मैं इंशाल्लाह जैसे आपको फोन कट होगा मैं आपको नंबर को भेज दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। सूरे आले इमरान आयत नंबर 169, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें हरगिज मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं, तुम्हें खबर नहीं। इस आयत की तफसीर में काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं,
मुफस्सिरीन की एक जमात आयत के तहत शहीदों की जिंदगी का बयान करते हैं, लेकिन ये आयत तमाम अंबिया, सिद्दीकीन, सालेहीन की हयात पर दलालत करती है, क्योंकि शहीदों से बड़ा मकाम सिद्दीकीन का है और उनसे बड़ा मकाम अंबिया का है। ठीक है। तफसीर मजहरी सफा नंबर 151 जिल्द नंबर 1। अब इसी तफसीर को कुरान पाक में इमाम काजी शौकानी, ये सब हम वहाबियों के बता रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे ही बताएंगे। कुरान पाक में एक आयत है जो शहीदों की जिंदगी पर इस्तदलाल करती है और उनकी जिंदगी दुनिया के जैसी ही है, तो फिर अंबिया की हयात का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, ये इस आयत के ज़ाहिरी मानों पर भी साबित है, या जो मायने मुहद्दिसीन से निकलते हैं। अलहावी फतावा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 149। ठीक है। आपने तफसीर किया तो तफसीर जो कर रहे हैं तो आपने फिर से बात लिखी तो उसके साथ कुछ ना कुछ कोट किए होंगे कहीं ना कहीं की हदीस। चलिए और बताते हैं, एक और बता देते हैं, मुल्ला अली कारी की भी बता देते हैं। अंबिया की हयाते दुनिया, मुल्ला अली कारी की भी यही तफसीर बता देता हूँ। अंबिया की हयाते दुनिया और बादे वफात की हयात में कोई फर्क नहीं, इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के वली मरते नहीं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का सफर करते हैं। मिरकात जिल्द 2 सफा नंबर 212। और अल्लाह तो फरमाता है कि जो चले गए आप अगर देखें तो आपकी बात खत्म हो गई, आपको और कुछ कहना है? नहीं, अकल का दखल नहीं लगाइएगा। मैंने आपको यहाँ पर तफसीरें 4 या 5 तफसीर भी बता दी हैं, कुरान भी बता दिया, अहादीस भी बता दी। अब आप ये साबित करिए कि अल्लाह के वली, आप ये साबित करिए कुरान की नसे कतई से कि अल्लाह के वली कब्रों में सुनते नहीं, अल्लाह उन्हें ये शर्फ अता नहीं करता कि वो दिल की बात नहीं जान सकते। साबित करिए। कुरान में यह है कि नहीं कि आप मुर्दे को नहीं सुना सकते, उसकी तफसीर बयान करिए। आप वहाँ पे क्या लिखा हुआ ये तफसीर बयान करिए। इस आयत करीमा की तफसीर बयान करिए कि मुर्दे को नहीं सुना सकते। ये आयत करीमा किसके ताल्लुक से नाजिल हुई है, आप मुझे इसकी तफसीर पर फरमाइए। आपने बयान करनी है ना, क्योंकि मैंने कहा बयान करनी है, मैंने कहा बयान करनी है। आप दावा कर रहे हैं जनाब, तो आप ही तफसीर भी बयान करेंगे। एक मिनट, आप हम बोला तो कि हम किसी का अभी जितना आपने तफसीर बताया जनाबे वाली, मेरे पास अभी 9 तफसीरें और थी, मैंने वो बताई नहीं वक्त की किल्लत की वजह से। अब मैं आपके ऊपर छोड़ा हूँ। आपने कहा कि तुम कब्रों को नहीं, जो कब्रों में मुर्दा उनको नहीं सुना सकते, तो आप इसकी तफसीर पेश करिए जैसे मैंने पेश करी है। ये मुनाजरे का मैदान है, यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा है। मैं तो हक भी नहीं रहा हूँ भाई, मेरे वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इधर उधर भागने का, राह फिरार इख्तियार करने का कोई रास्ता नहीं है। आपने जो आयत करीमा बताई है उसकी तफसीर पेश करे बिना आप एक कदम आगे नहीं जाएंगे जनाब। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि हम लोग जिंदा और मुर्दा पे नहीं है, हम है कि भाई मुर्दे। बात काटिए मत, जो आपने बतौर दलील आयत पेश करी है उसकी तफसीर बता के आगे बढ़िए। बात आपने कट किया है, मैंने नहीं कट करी। अरे भाई, आप आवाज सुन रहे हैं ना मेरी? हाँ बोलिए। आप ये बताइए, मैंने बात कट करी? इन्होंने दलील दी, मैंने उस दलील की तफसीर इनसे मांगी, तो क्या मैंने बात कट करी? नहीं, अरे भाई आप तफसीर पेश कर दीजिए। तफसीर पेश करिए, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। तफसीर पेश करिए। वैसे भी कुरान शरीफ खोल लीजिए, इस्लाम 360 खोल लीजिए। बिल्कुल तफसीर पेश करिए। हम पहले शिर्क पे बात कर रहे हैं, हम जिंदा और मुर्दा पे नहीं गए। आपने घुमा के लेके गए, यही तो आदत खराब है ना आप लोगों का। आपने खुद कहा कि हम कहाँ रहेंगे पहले शिर्क के ऊपर। मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप आ गए, आपने वो आयत करीमा पेश कर दी, मैंने तफसीर मांग ली, अब आप बगले झांक रहे हैं, अब आप राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं। जनाबे वाला, यहाँ राह फिरार इख्तियार नहीं करने दिया जाता है, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। सुनिए, रूल्स रेगुलेशन तो आपने तोड़ दिया ना। मैंने नहीं तोड़ा है, आप तोड़ रहे हैं। सुनिए, आपने कहा कि गैब में सुनने की सिफत सिर्फ अल्लाह की है, उसके बाद आप वली पे आ गए। तो वली जिंदा है, जिंदा सुन सकते हैं अल्लाह की अता से। तो अब आपने जो कहा कि कुरान ने कहा कि तुम मुर्दे को सुना नहीं सकते, तो आप उसकी तफसीर बयान करिए। बेशक तफसीर बयान करिए। हम इस मुद्दे पे मैंने पहले भी कहा कि एक बाई एक होगा बात,
ठीक है, अभी मेरा जिस चीज से उनका इत्तेफाक है और मेरा इत्तेफाक है उस पर पहले बात कर रहे हैं। मैं शिर्क की बात कर रहा हूँ। आपने शिर्क की बात करी, सुनिए जनाब, आपने शिर्क की बात करी, सुनिए जनाब, आपने शिर्क की बात करी, आपने पूछा गैब, मैंने आपको उसका जवाब दिया। आपने कहा इसकी वजाहत कर दीजिए, मैंने उसकी वजाहत भी करी। मेरी बात तो सुन लीजिए। अब मैं ये साबित कर रहा हूँ कि वली अल्लाह जिंदा है। आपने कहा कि नहीं वो मुर्दा है, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तुम उनको नहीं सुना सकते, तो आपने ये दलील दी। अब इस दलील की तफसीर मैं आपसे नहीं मांगूंगा तो क्या मैं उसामा बिन लादेन से मांगने जाऊंगा? यहाँ की तफसीर देखिए, हम क्यों तफसीर दें आपको? हमने कुरान की आयत पेश, क्योंकि दावा आपने करा है। जिस तरह से कुरान की आयत जो दावा पेश करता है वही दलील भी पेश करता है। आपको उसूल मुनाजरा नहीं पता? आपने क्या मुनाजरा रशीदिया नहीं पढ़ी जिसके अंदर उसूल मुनाजरा, उसूल शराइत लिखी है मुनाजरे की? आपको नहीं पता? आप चले आए हैं मुनाजरा करने, आपको ये नहीं पता कि जो दलील देता है वही तफसीर भी पेश करता है? आपने कोई मुनाजरा आज से पहले किया नहीं है क्या? देखा नहीं है, या आप नए इस मैदान में आए हैं? इसलिए ना जैसे बात हो रहा है, ये कहाँ चले गए? इनको बोलिए कि जब एक आदमी कर रहा हो तो अपना बात कहकर चुप रहे, दूसरे का सुने। आपसे मैं तभी सुनूंगा जब आप उस आयत की तफसीर बयान करेंगे। आप बस एक ये तफसीर बयान करने में क्या हो रहा है? आप डर क्यों रहे? तफसीर बयान करिए। आपको पहले हम बढ़ेंगे ही नहीं एक जब तक नहीं आप ये कहें कि भाई जिस चीज से आप स्टार्ट किया था शिर्क पे, आप वहाँ पे रहे। बात स्टार्ट हो चुकी थी ये। नहीं, जब मैं आपको वली की हयात पे दलील दे रहा था तो आपको वहीं रोकना चाहिए था कि वली की हयात पे दलील मत दो, बात शिर्क पे करो। आप उसका दिफा करने लगे, आपने दिफा में ही एक आयत करीमा पेश कर दी जल्दबाजी में, और आपको तफसीर देने में अब आपके जमीन फटी जा रही है। तफसीर पेश करिए। हम दे सकते हैं और देंगे तो दीजिए। आप कुरान शरीफ या इस्लाम 360 उसमें लिखा तो रहता है, ये पढ़ दीजिए। देखिए वेबसाइटें खोलिए, गूगल बाबा को बुलाइए। हो गया। अब आगे अपने इसी को कहते हैं कि जरा सबर रखें बाबूजी, मुगालतेबाजी मत दीजिए, उसकी तफसीर पेश करिए। आगे इंशाल्लाह बात होगी। मेरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी। मेरा आपसे वादा है एक सुन्नी हनफी बरेलवी का। आप हमें उस आयत करीमा की तफसीर पेश करिए, आगे बात करते हैं। मुसलमान बने, बरेलवी को छोड़े, हनफी तक काहे के लिए जा रहे हैं? मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है सच्चे हो तो दलील दो। आपने दावा करा है, दलील दीजिए। आप इस आयत करीमा की तफसीर पेश करिए। आप इस आयत को कैसे पेश कर सकते हैं कि ये तो इसके लिए भाई, गैर कौम के लिए, और आप फिर ही कह रहा हूँ दूसरा को जब आपके ऊपर आयत पेश करता तो आप कहते हैं तो काफिर के लिए। वाह, मैं कह रहा हूँ आप उस आयत की तफसीर बयान करिए, मुगालतेबाजी मत कीजिए। ये नाटक वहाबियों के बहुत पुराने हैं। उस आयत करीमा की तफसीर पेश करिए। तफसीर जलालैन शरीफ, तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तफसीर मदारिक शरीफ, आप वो तफसीर पेश करिए। अरे इनको तफसीर इब्न अब्बास भी पेश करिएगा तो कोई फायदा नहीं है, बोलते हैं हम नहीं मानते हैं। और जब ये मुहद्दिस हैं, क्या ये मुहद्दिस है जो तफसीर नहीं मानते? फिर आप दोनों आपस में बात करेंगे? नहीं, आप मुझे नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। इस आयत की तफसीर पेश करिए, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं क्योंकि जो मुझे बीच में लेके आए। चाचा, इस आयत की तफसीर पेश करिए, आगे बढ़ते हैं, बात कंटिन्यू करते हैं। फर्जी में बहस से फायदा नहीं है। वही बात है, आप लोगों के पास तो होती नहीं है बात, और बात आपके पास नहीं है। दलील आप दावा कर रहे हैं जनाबे वाला, दलील आपके पेट से निकल नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है तफसीर में पेश करूंगा तो मैं मुंह की खा जाऊंगा। ये बता रहा आपको मैं सारा का सारा तफसीर में। अब मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस बताने लगा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतें कुरान करीम की मुसलमानों पे तस्बा करें वो ख्वारिजी हैं, वो बदतरीन मखलूक हैं। जिस तरह से आपने जो आयत करीमा का हवाला दिया कि जो कब्र में है उनको सुना नहीं सकते, ये बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई है, आप ख्वारिजियों में से हो गए, आप बदतरीन मखलूक हो गए हैं। हदीस से मैंने आपको बुखारी शरीफ से साबित करा है। आपकी शिकस्त हो चुकी है, आप राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं, आप बगले झांक रहे हैं, आपको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, और मैं आपको भागने नहीं दूंगा। आपके मुंह से इसकी तफसीर बयान करवाऊंगा। बयान करिए इसकी तफसीर। जब आदमी पागल हो जाता है तो आप जब आदमी हार जाता है, शिकस्त खा जाता है, जब बातिल ढेर हो जाता है तो बातिल यही बातें बघारता है जो आप बघार रहे हैं। अरे सच्चे हैं तो वो दलील पेश करिए, वो आयत करीमा जो आपने बताया उसकी तफसीर पेश करिए। आपको मैं पहले वहाँ तक जान ही नहीं, पहले मैं आपको कहाँ हिलने दूंगा पकड़ के? तो मैंने आपको बांध के रखा है, भाग तो आप रहे हैं, रस्सियां तो मैंने आपके बेड़ियां पैरों में डाल दी। अभी आपने जो कुरान की आयत पेश किया उसकी तफसीर पेश करने में आपको क्या दिक्कत है आखिर?
हाँ यही बोल रहे थे, दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते आप, उससे भी बात करेंगे ना, हम देंगे ना, हमने कब कहा कि नहीं देंगे। अरे तो कब देंगे? पार्टी की बहस हो रही है, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट में होल्ड कर रही हूँ, आप तफसीर ढूंढिए, निकालिए तफसीर। पहले सिर्फ से आए आप जिस चीज की, यानी कि आज आपको इस बात से मैं शिर्क और बिदत और सब पे ही बात कर रहा था। आप वली अल्लाह की हयात के मुनकिर हैं, आपने उसकी दलील कुरान से पेश करी, मैंने तफसीर मांगी, आप तफसीर दे क्यों नहीं रहे हैं? हम इससे भी बात कर रहे हैं, तफसीर क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ इतना बताइए, तफसीर क्यों नहीं दे रहे? अचानक ये फिर बीच बीच में बोलने का हो गया, समझ में आ गया ना। तफसीर क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? बात जब चलती है तो एक एक बात जब होना, हमको समझना नहीं है, हमको कोई समझना नहीं है। उनको समझने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको खुद पता है। आप क्या उनको समझाएंगे? आपको बता चुके हैं, हमको आपकी इस्लाह करनी है ना, हमको खुद की इस्लाह। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, इनके कल पे तो मोहर लग चुकी है, तो बड़ा लिख चुका है, क्या लिखा है ये खुद जानते हैं। ये राहिल भाई, ये मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब से मुनाजरा करने वाले थे। हमें भैया पहले पैजामे का नारा मजबूत वाला कर लेना, तुम गुलामों से तो निपट नहीं पा रहे हो, कहाँ उस्तादों से भिड़ोगे जाके। तुमसे एक तफसीर मांगी तो तुम अटक गए, वहीं फंस गई, तुम्हारी रेलगाड़ी का इंजन अलग हो गया, पटरी से खिसक गया, तुम तफसीर पेश नहीं कर पा रहे हो। जिसके पास तौहीद ना हो, और तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कम से कम एक हुज्जत आपका कायम कर दिया, और आपने अपनी जुबान से इकरार किया गैब में सुनने की सिफत अल्लाह की है, और आपने मैंने इकरार किया गैब में सुनने की सिफत बेशक अल्लाह की है, और अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। किसने इनकार किया? इससे इनकार करे वो काफिर है। इसका इनकार किसने किया? नदियों के लिए फिर ये शैतान वाली हंसी बस हो गया ना, यही हमें आपकी जो लाइल्मी है, यतीमुल इल्म है, उस पर हंसी आ रही है। आप हार चुके हैं, आपको पता है तफसीर पेश नहीं कर सकते। 2 मिनट का वक्त और दे रहा हूँ, तफसीर पेश नहीं करी आप हार जाएंगे, टाइम शुरू हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ तफसीर मांगूंगा बस। जो इंसान शिर्क से आगे नहीं बढ़ता उससे हम लोग नहीं बात करते हैं। तौहीद पहले, उसके बाद ही कोई काम। अगर तौहीद आपके पल्ले में है तो आपको हम दावत देंगे, नहीं तो सबसे 45 सेकंड बाकी है। 45 सेकंड क्या करें, हुज्जत कायम कर दी। जफर आपने भी सुन लिया 40 सेकंड। अरे तो हमको तो मालूम ही था कि गैब में सुनने की सिफत अल्लाह की है, और अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे, तो इसमें जानने वाली कौन सी बात है। हम तो ये तक कह रहे हैं कि जो इसका इनकार करे, जो अल्लाह के गैब का इनकार करे, वो काफिर है। तो फिर आप चाहते हैं ना मांगने के लिए, जिसको आप मानते हैं। आप बात ना घुमाइए जनाबे वाला, आप चुपचाप पतली गली से सुनिए मेरे भाई, ये फिर वहीं आ रहे हैं, ये तफसीर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हिलूंगा नहीं, टारगेट वहीं रख रखा है। तफसीर पेश करिए इस आयत की जो आपने कहा है। हाँ, ऐसे आप हमको बहुत पहले भी ये पेश किया था, ये आए तो मतलब कि तुम सुना नहीं सकते। हाँ। तो उस वक्त हमने आपको जवाब दिया था कि हम जाती है, अल्लाह जो जिसे चाहे सुना दे, हम सुन रहे हैं, ये भी जाती है, सॉरी ये अताई है अल्लाह का, अल्लाह ना चाहे तो ना सुनाए। बेशक। तो उस टाइम हमने आपको ये जवाब दिया था, आप इसकी तफसीर पेश कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ये जो 10 मिनट से ऐसी फालतू की बहस हो रही है, उससे बेहतर है कि आप हमको साफ साफ तफसीर पेश कर दीजिए उसकी। तफसीर पेश करेंगे तो हार जाएंगे ना। क्या लिखा मुफस्सिरों ने, आखिर क्या लिखा इस आयत के मुताल्लिक है कि गए? पता नहीं, शायद देखिए जरा है। अरे चले गए। अरे भैया वो कहाँ रुकेंगे, खुद ही 2 मिनट से पहले भाग गए। उन्हें पता है कि नारा मजबूत कर लो, पैजामा नोच लेंगे ये दोनों मिलके भी। ये आदमी मालूम है मेरे पीछे तकरीबन 1.5 साल से पड़ा हुआ है। अच्छा। अब ये कल हम इसको एक मतलब ऐसी बहस हो रही थी किसी बात पे, एक दिन इसने फोन किया जी। उसके बाद बहस हो रही थी, तो हमने इसको एक सूफी कलीम हनफी साहब का एक तकरीर थी, उसका लिंक दिया। तो ये हमको क्या लिखता है कि ये उनका कांटेक्ट नंबर है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो हम बोला ठीक है, हम आपसे बात करवा देंगे। मेरे पास उनका पर्सनल नंबर भी था। तो खैर कल हम शाम में शाम में 7 बजे उनको फोन किया कि मुफ्ती साहब ऐसा है कि एक बंदा बात करना चाहता है। बोले ठीक है, कल बात करा दोगे 3 से 6 के बीच में जी। तो हम बोला कि पहले इनको कहाँ उससे भिड़ाएं, पहले हम बात करते हैं आपसे जी। हाँ, तो उसके बाद फिर हो गया इसका यही हाल ही। बहुत पहले भी ये दलील पेश करता है, हमको पेश किया था। वहाँ जाता तो हार्ट अटैक से मर जाता है, अगर उनसे कॉल कर लेता तो हार्ट अटैक दिल के दौरे से मर जाता है। हम वही सोच रहे थे कि हम कहाँ उनसे, भी मुफ्ती है भाई, बिल्कुल भाई, वक्त कहाँ है। सही बात है, जाहिल से बात करने का। साले पे ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात करें, फिर लीजिएगा साले को कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है। क्या नाम है इसका भाई?
قیصر امام. قیصر امام. اوکے بھائی، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم.